Good evening. Welcome to Gunner Shot, Vanakkam, and Sat Sri Akal. Aaj we're going to speak about the summer spring of Pakistan with my good old friend Tahir Gora. And I must welcome Tahir Bhai from Canada. And good evening to you. Thank you, And sir. how's the Canada morning there? The Canada morning is not that bad. It's almost actually it is 20th May, and the temperature outside is in my city, Ontario, is +5, which is Yeah, quite okay. unusual. Oh, that's nice. +5. Yes, Right. Okay. And it's then, rainy outside, but we are hearing very vibrant news from all across the world. Either it's Arab League summit, G7 G7 summit, summit. Yeah. फिर वो भारत में जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है एक बढ़िया मीटा G20. G20 का मीट टूरिज्म पे. Yeah. तो so many exciting things in news worlds happening, sir. Yeah, I think so. There are a lot of exciting things happening, and even more exciting things are happening in Pakistan. And that's the subject of our talk today. I chose this subject. I couldn't call it an Arab Spring, so मैंने बोला summer spring है ये. वो सर जो अरब स्प्रिंग भी था वो भी स्प्रिंग से कम स्प्रंग ज्यादा था. Sprung. ये भी कहीं spring होके जा रहा है. देखिए ना जो So अरब स्प्रिंग है सर उसमें आप देख लीजिए कि उसमें जो हशर सीरिया का हुआ, जो हशर इजिप्ट का हुआ, मोरक्को का हुआ, तो वो मतलब असल में आई डोंट नो मुस्लिम उम्मा को एक ख्वाहिश है पाकिस्तान में भी कि कोई एक मसीहा आएगा सब ठीक कर देगा. दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट बिलीव इन सिस्टम. yeah, दैट्स द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान टू. yeah, I agree with you completely because all these springs which happened across West Asia and Egypt and all that, they started as a spring and they went back to the same status as what they were. एंड पाकिस्तान में भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ऐसे कुछ होने वाला है. पर खैर, देयर इज अ सिचुएशन इन पाकिस्तान. There's a lot of talk of end and there's a lot of talk of democracy and what have you. I'll just show you a couple of slides which I've made, which this thing. They say democracy is something like, you have to understand. In a democracy, a civilian is right even if he's wrong, and a military man is wrong even if he is right. And unless this equation is put in place, there's no democracy. And you'll agree with me that in Pakistan, ये तो हुआ ही नहीं कभी, या एब्सोल्युटली right? या ठीक है ना. हम कितने भी हमारे गवर्नमेंट को कोस लें, पर गवर्नमेंट सिविलियन का गवर्नमेंट अच्छा है, वो सही है. जो भी गलत करेगा वो सही है. या ठीक है. एज एन आर्मी मैन जो भी मैं सोचूंगा वो सोच सकता हूँ, पर अगर उससे ज्यादा मैं गलत ही हूँ. राइट. ये मेरा मानना है. और आज के दिन जो पाकिस्तान का हालत है, what do you see? This is something this is written by someone in Pakistan only. It is an opposition pitted against the security establishment and a government which is loggerheads with the apex court. यानी कि security establishment और opposition इमरान खान के बीच में लड़ाई चल रहा है, और साथ साथ गवर्नमेंट और apex court के बीच में लड़ाई हो रहा है. I just heard Maryam Aurangzeb, she was, waxing venom at the courts. Okay. But अगर आप देखेंगे, a country is judged by the law under which it is ruled, the law. If the law is military in nature, then are we looking at a military rule? क्योंकि ये military court वगैरह सेटअप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. और despite the fact there's a constitution, there is a Supreme Court, all fine forms of court are functioning, and over and above that, there is a, you're setting up military courts endorsed by the parliament, and it's a military law. That means it's a military rule. I mean, is Pakistan heading into a military rule? That's the first question. Or yeah. जी सर देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी मिलिट्री रूल में ही है. ये तो बीच में एक इमरान खान की अपनी पावर स्ट्रगल थी. इमरान खान ने जो कुछ किया है वो इस एम से नहीं किया कि वो मिलिट्री रूल को खत्म करना चाहता है. वो इस एम से उसने किया कि मिलिट्री रूल उसको फेवर करे, उसको लेकर आए. करेक्ट. ठीक है, मतलब ये कोई प्रिंसिपल्स की लड़ाई नहीं थी.
ना है। ये पावर की लड़ाई है। इमरान इज कंटिन्यूसली अर्जिंग एंड प्रेसिंग पाकिस्तान मिलिट्री टू सपोर्ट हिम। वो ये थोड़ी कह रहा है कि भाई मैं मिलिट्री का जो रूल है वो नहीं चलने दूंगा इस देश में। वो तो ये कह रहा है मिलिट्री का रूल मेरे साथ आन मिले, जैसा वो पहले मिला हुआ था। अब से जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, अच्छा फिर ये डेमोक्रेसी की जो आपने अभी एक स्लाइड दी, बहुत बढ़िया है, प्रिंसिपली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन देशों में, जिन समाजों में डेमोक्रेसी को सिर्फ वोट देने का नाम समझा जाता है, जैसा इमरान के वो बब्बल बना हुआ है, उसके गुब्बारे में हवा भरी हुई है, वो ये समझता है कि आज अगर इलेक्शन होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। हो सकता है वो जीत भी जाए, अपेरेंटली उसकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक उसके कोई एटीट्यूड नहीं है। वो सिर्फ डेमोक्रेसी को बरत के, वोट के नंबर्स को बरत के पावर में आना चाहता है दोबारा से, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई इरादा नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाएगा या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स को वहां पे वो इंप्लीमेंट करेगा। He has no intention, neither he has shown the intention, nor he has said any word on that. वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर की स्ट्रगल में। अच्छा फिर सर जो पाकिस्तान में प्रिसाइजली हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट द पावर स्ट्रगल बिटवीन पॉलिटिकल ग्रुप्स और इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्लैश बिटवीन इमरान खान एंड पाकिस्तान मिलिट्री। इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उसका सपोर्टिव है, वो उसकी शय पे कर रहा है। बट वी हैव विटनेसिंग नाउ सिंस मई 9, 10, 11, 12 उसका जो सपोर्टिव ग्रुप है मिलिट्री के अंदर वो वीक बढ़ रहा है। अच्छा ये ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो मिलिट्री के अंदर के ग्रुप्स हैं ये इनफैक्ट सिर्फ पावर स्ट्रगल में कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। यानी ये लेयर्स हैं इस सारे क्राइसिस की। इट्स नॉट वेरी सिंपल। पाकिस्तान की मिलिट्री, एज यू नो, you served as a high profile army general in Indian army, and you must know Yeah, all yeah. those I you know, agree with you. I ठीक है ना understand सर? it. ठीक है। अब सर पाकिस्तान में 2014, 13, 14 से ये सी पैक शुरू होता है चाइना का, और फिर ये 2016, 17 में पाकिस्तान आर्मी के अंदर रिफ्ट बढ़ती है। एक तो होती है ना नेचुरल रिफ्ट है, पाकिस्तान आर्मी जैसे जो आर्मी होते हैं जहाँ पे जनरल्स का अपना पावर स्ट्रगल होता है, लेकिन एक अब इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए। अब मैं चाइना पैसा लगा रहा है, चाइना तो पैसा लगा के भूलता ही नहीं है ना, वो तो गर्दन से पकड़ लेता है। Hmm. Yeah, अमेरिका yeah, पे I agree. जी, अमेरिका पैसा लगाता है, वो फिर दो दो बुरे शब्द कहता है और फिर भूल जाता है। As we witness कि Yeah, अमेरिका funded Pakistan over $33+ billion during $1 war on terror, ठीक है ना, और वो सब वो coalition support coalition support funds में. जी फंड्स थे, फिर वो वैसे पता नहीं कितने उनके फंड्स थे। तो वो चाइना तो $33 मिलियन लगा के गर्दन पे कब्जा कर लेता है। अच्छा अब चाइना का पैसा लगा हुआ था, ऑल्दो चाइना इन्वेस्टेड व्हाटएवर, वो चाइना को ही 80-90% वापस चला गया, उन्हीं की कंपनियों ने सारे वो कंस्ट्रक्शन ठेके लिए। लेकिन चाइना को तो एक रीजन चाहिए होता है आपकी सोवरेनिटी को चैलेंज करने का। वी सॉ इट इन मालदीव, वी सॉ इट इन Yeah, श्रीलंका, everywhere. Yeah, एवरीवेयर, ठीक है ना सर। everywhere. अब ये सारा खेल था। अब आपके सामने जो हुआ इमरान खान के जमाने में, चाइना का सी पैक पैक हो गया, ठीक है। अब ये फिर उनके फेवरेट लोग आए हैं, शहबाज शरीफ, जरदारी। आई डोंट ब्लेम देम, आई डू अंडरस्टैंड कि ये जाएं तो जाएं भी कहाँ ना, ये अमेरिका इनको गोद में लेने को तैयार है, ना अरब वर्ल्ड उस तरह अकोमोडेटिव है। तो चाइना भी कहती है कि हम आपको गोद में तभी लेंगे कि इस बच्चे को, यानी इमरान खान को इसको निकाल दो. इसको निकालो, ठीक है, ठीक। अच्छा आर्मी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की जो दिली तमन्ना है वो तो यही है कि अमेरिका उनकी मदद करे, उनके बच्चे भी वही पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज भी वही रहती हैं, उनका पैसा भी पैसा भी वही अमेरिका है. देता है, ठीक है ना। चाइना से तो ये इतना पैसा भी नहीं मिलता,
कोई चाइना में जाके सेटल भी नहीं होता। सेटल भी हो ही नहीं सकता सर। अब देखिए ना, चाइना को सिटीजनशिप थोड़ी देता है। और फिर पूरी दुनिया के लिए लैंग्वेज बैरियर है। पूरी द होल वर्ल्ड वांट्स टू लिव इन इंग्लिश वर्ल्ड, कोट एंड कोट, ठीक है। फिर मॉडर्न वर्ल्ड, ग्लैमराइज वर्ल्ड, वो तो अमेरिका और यूरोप ही है, और हमारा कनाडा, और यही है ना। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान आर्मी को, बिकॉज अमेरिकन पॉलिसीज चेंज हो गई, वो कोई अब अमेरिका की तरफ से उस तरह की घास नहीं पड़ रही, तो वो बेचारे भी कहाँ जाएंगे। मतलब आई फील प्रिटी ऑन देम एज वेल कि उनके पास कितनी ऑप्शन बची है। अच्छा, अब ये इमरान खान ने जो फ्रेंडली कंट्रीज थे, ये जो अरब वर्ल्ड सी, जीसीसी, और इन सब के साथ भी मैस कर लिया। भारत के साथ भी रेटरिक जो था वो उसकी हीट बहुत बढ़ा दी, कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिर ये डिलीवर नहीं किया इसने अपनी सरकार के जमाने में। जैसे वो होता है ना, एक एक पार्टी, एक नाइट पार्टी का सा माहौल रखा हुआ था। मतलब अब तो चीजें ओपन है, उसके पार्टी के जमाने में भी ओपन थी, कि जैसे हर जगह पार्टी हो रही है, कि मतलब अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे ही इज, दैट्स द वे हिज Yeah, he's पीपल a आर। one man show. जी, वन मैन शो भी, और मतलब पता नहीं क्या कुछ इसके, तो Yeah, वो। and he doesn't have a plan at all. जी I सर, mean, he doesn't have a plan. वो पूरे का पूरा जो है ना, गवर्नेंस का निजाम मेस्ड अप। फिर इसने अपनी, फिर ये अपनी, इसकी अपनी पर्सनालिटी का जो कल्ट है वो बड़ा खतरनाक है। यू सी, ही थिंक्स हिमसेल्फ ऑफ एवरीथिंग। मतलब वो कहेगा कि मुझे भारत का भारतीयों से ज्यादा पता है, उज्बेकिस्तान का उज्बेकों से ज्यादा पता है, यूरोप का यूरोप से ज्यादा पता है। सो ही थिंक्स ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। कि वो ये समझता है कि उसके अक्ल में जो बात है, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द नेशन। अच्छा, वो सारे फैक्टर्स कलेक्ट होके फिर जब आर्मी के अंदर वो जो 2016 से चल रहा है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, कि भाई ये अमेरिका, वेस्ट, फिर सर दुनिया भी तो चेंज हो रही है ना, पूरी वर्ल्ड वाइड। मतलब कोई एक चीज थोड़ी होती है। अच्छा, अब देखिए जैसे मतलब ईरान की और सऊदीया की डील, अरब लीग्स में Yeah. वो कि बशर उल असद का ला गया, ज़ेलेंस्की पहुंच गया। मतलब दीज आर Yes. नॉट द सिंपल थिंग्स। इधर इंडिया I2U2 में है, क्वाड में है। सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग। वो अब पुराने वाले ब्लॉक भी नहीं रहे। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान आर्मी के पास अब वो पैसा भी नहीं है, IMF से भी नहीं मिल रहा। देखिए ना, इमरान खान इसी IMF, इसी के वो, चूंकि ये अमेरिकन पपट है, ये ठीक है कि ये कहता है अमेरिकन साइफर भी है, अमेरिकन बुरे भी हैं, मुझे हराना भी चाहते हैं, वो तो दिखावे की बातें हैं ना। इनफैक्ट तो ये अमेरिकन गोद में है। लेकिन सर मैं ये भी आपको बता दूं, इमरान खान ऐसा आदमी है, ये चाइनीज गोद भी चला जाएगा एक ही दिन में, चेंज होके। लेकिन इसको चाइना अपनी गोद में तो लेगा। मतलब Yeah. किसी की गोद में आप सर तभी जाएंगे ना जब दूसरा आपको अपनी गोद में वापस लेने को तैयार हो। अच्छा, ये तो कभी भी चाइनीज गोद में नहीं था, लेकिन वो ये भी करने को तैयार है। ही इज सो अपॉर्चुनिस्ट गाय, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो पाकिस्तानी फौज के अंदर के जो ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में अब जंग जो है, हमने सर अब तक, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब यूं लगता है कि जो चाइना, जो प्रो चाइना ग्रुप है अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल आसिम मुनीर, वो अब लगता है कि उनकी Super. ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। और मतलब ये कुछ सीक्रेट नहीं है, अब तो ये ओपन सीक्रेट है बातें। सोशल मीडिया के जमाने में तो अब साफ पता चल रहा है, जिस तरह लाहौर के कोर कमांडर ने किया, नॉट जस्ट द कोर कमांडर ऑफ लाहौर, मेनी अदर कोर। Yeah, yeah, others also have spoken, but it has not come out in open. That's about all. ठीक ठीक है ना। तो मतलब वो एक साहब जो ISPR के होते थे, वो अब कोयटा के कोर कमांडर हैं, Yeah. मिस्टर आसिफ गफूर। ये सब Kapoor. इमरान खान प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं। लेकिन अब सर आप भी जानते हैं कि आर्मी के अंदर भी ये होता है कि फिर जब एक ग्रुप का कंट्रोल अच्छा हो जाता है तो फिर आर्मी उसी के पीछे चलती है। Right. बिकॉज ये तो बात है ना आर्मी की, कोई किसी भी देश की हो, कि उनमें एक डिसिप्लिन तो होता है। ठीक है, वो रिफ्ट भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू गो विद द फ्लो। Yeah. अब And ये, it appears that Asim Munir has got a control of the army at this point of time. यस, यू आर राइट। मतलब एट दिस Right? At this पॉइंट, point of time, he's got some control, या right? And he's also, but there's a rift between the veterans and the serving people that is still on.
या ऑफ कोर्स ये इमरान खान वो अपने इसमें है, बट आपका जो आपने बोला, an important point which has come up and where America has put its foot in, ये जो खलीलजाद ने जो उसने ट्वीट आउट किया था, राइट, जिसने ये देखिए इसने बोल दिया कि in this tweet he's spoken about the army chief, या that he's used gutter language या and that he's threatened the wives and all that, and they've expressed their concern about his having control over the a nuclear state and the nuclear button and all that. So what you're saying, and there also seems to be some concern that and not only concern, there's a realization कि ये the current chief and the current army dispensation is swinging towards China. So what you're saying, जो आपने बोला कि इनके there's one fight which is happening at the political level within Pakistan. There's an extraterritorial fight happening between. So how do you see that affecting things inside? देखिए सर, पहले तो ज़ल्मे खलीलजाद इस वक्त इतना रेलेवेंट आदमी नहीं है But जितना maybe ये he's being पास्ट हुआ used था। for maybe he's being used for messaging. ओ यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो अच्छा, अमेरिकन को भी ये पता है कि भाई ज़ल्मे खलीलजाद डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ रेलेवेंसी, बट स्टिल दे आर यूजिंग हिम। ठीक है, वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब हम हमारी तरफ से भी तो कोई बात होनी चाहिए ना, इनडायरेक्टली। तो वो अपना हिस्सा डाल रही है। लेकिन सर अमेरिकन भी जहां बहुत नईव हैं, वहां पे वो इतने स्मार्ट भी हैं कि कल कला को अगर वो देखेंगे कि पाकिस्तान में चाइना ब्लॉक जो है वो आ गया है कंट्रोल में, तो वो अमेरिकन भी उनके साथ बैठ जाएंगे। बिकॉज अमेरिकन को भी ये पता होता है कि भाई हमें कोई वर्ल्ड IMF से 4-6 बिलियन डॉलर देने से क्या फर्क पड़ना है, एटलीस्ट ये फिर हमारे हाथ से ना निकल जाए टोटली। वन थिंग। सेकेंडली, फिर अमेरिकन का भी ये होता है कि एक आदमी डिलीवर कर रहा था, इमरान खान। आज जो हम देखते हैं सिचुएशन, अब वो उसकी पावर नहीं रही, तो अमेरिकन भी उसी घोड़े पे पैसा लगाते हैं जो घोड़ा भागने के काबिल हो। जैसे ही वो भागने के काबिल नहीं रहता, तो अमेरिकन को भी याद नहीं रहता। वो कहते हैं हु केयर्स, ये तो कोई ना कोई घोड़ा और आ जाएगा, हम इसी आर्मी के घोड़े को आगे लेके चलते हैं। आज ठीक है, वो अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से चाइना के साथ है, कल हमारे साथ आ जाएगा। और दैट इज द केस। वो भी कोई इशू नहीं होता। मतलब ये इतने बड़े गेम्स में तो ये कोई कॉस्ट नहीं होती। नहीं, वो इसमें जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अमेरिका अगर वो आर्मी का बोलबाला ज्यादा हो रहा है विद इन पाकिस्तान, so America will also start pitching in, and so that they can undercut China. Yes, right. While China has its उनका जो leverage है through the CPEC and other things, and the loans which they have given, America has the leverage of IMF, right? And the fact that ये जितने generals हैं और जितने इनके retired generals हैं, उनके, like you said, their property, their children and all are in America and the West. So that leverage is there. So the fact that Pakistan has become a battleground state is known, right? But equally, there is also a reality that Pakistan has lost international relevance. जैसे आपने बोला, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कहीं, यहाँ G20 हो रहा है, G7 हो रहा है, ईरान और सऊदी अरब का डील हो रहा है, I2U2 हो रहा है, देयर इज समथिंग इज हैपनिंग इन सूडान जो नया शुरू हो गया, राइट? उस चक्कर में वो हु इज बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान इज लूजिंग रिलेवेंस, और इस रिलेवेंस में हो सकता है ये शायद दोनों चाइना एंड अमेरिका बोलेंगे यार इनको सड़ने दो, जो भी करना है करने दो। ये भी हो सकता है। जी सर, ये भी बिल्कुल हो सकता है, होता रहता है। फिर जो बड़ी पावर्स होती हैं जैसे चाइना, अमेरिका है, वो भी अपने इंटरेस्ट में उनका भी शिफ्ट चेंज होता रहता है। या उनके शिफ्ट के जो चेंजेस होते हैं उसके कई शैडोज होते हैं। वो जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि एक तीर से कई शिकार कर रहे हो। शिकार, यस। ठीक है, तो वो तो मतलब जो भी वाइज नेशन होती है वो तो यही करती है। ये जो इमरान खान जैसे इररेलेवेंट लोग हैं
जो अपने आप को कुएं का मेंढक है ना, वो समझते हैं कि हम इस सल्तनत में पता नहीं क्या है। तो नो वन इवन considers worthy of any importance outside the world. Outside, yeah. ठीक है, अभी आप देख लीजिए कि अभी ये 4-5 दिन में इमरान के घर के बाहर को 2-3 हजार उसके पाले हुए गुंडे बैठे हुए थे। अब एक भी नहीं रहा। Within a span of 3 to 4 days, everyone has gone. ठीक है, तो वो जब कोई भी स्टेट अपना एक्शन ठीक से करना चाहती है, अब पाकिस्तान में स्टेट जो है पाकिस्तान आर्मी है, कोई भी सिविलियन सरकार तो होती नहीं है, ना इसकी सरकार थी इमरान की, ना ये जो सिटिंग सरकार है ये है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो व्हेन आर्मी डिसाइड्स इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड आर्मी इज ऑन द सेम पेज, आर्मी और पॉलिटिशियन का सेम पेज पे होना तो वहां जरूरी नहीं है ना, वहां पे तो आर्मी का सेम पेज पे होना जरूरी है कि विद इन आर्मी रिफ्ट ना हो। तो वो अभी भी है, आई वुडंट से कि वो रिफ्ट चली गई है, वो अभी भी है, ओवर नाइट नहीं, लेकिन इट लुक्स लाइक कि एट द मोमेंट जनरल आसिम मुनीर हैज टेकन ओवर द कंट्रोल सॉर्ट ऑफ थिंग। राइट। इस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान का वो जहां से आपने बात शुरू की थी, जो अरब स्प्रिंग है, वो अरब स्प्रिंग कोई है ही नहीं, समर स्प्रिंग है ही नहीं। इनफैक्ट वो इमरान के लोग तो इमोशनल लोग हैं, विजडम भी नहीं है, ना इमरान में विजडम है, और विजडम अनफॉर्चुनेटली जो डेप्थ होती है वो जनता में कम ही हुआ करती है पूरी दुनिया में। लेकिन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वो तो बिल्कुल इमोशनल है, जो बना ही इमोशनलिज्म पे देश है कि जी हम टू नेशन थ्योरी, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मतलब अनबिलीवेबल। Yeah, that is the crux of the inception of Pakistan. तो इस सारी सिचुएशन में आई थिंक कि पाकिस्तान को अपनी रेलेवेंसी ढूंढना होगी, जो आपने अभी कहा कि वो रेलेवेंस नहीं है, उसको कहीं भी देखा नहीं जा सकता। लेकिन अब यूं लगता है कि अगर ये सिटिंग सरकार दोबारा से री इलेक्ट हो जाती है तो इनमें जरा हेट्रेड कम है टूवर्ड्स नेबर्स, ये अपने रिलेटिवली काम से काम रखेंगे। हाँ, पब्लिक कंजम्पशन के लिए इनको कोई ना कोई स्टूपिड बयान स्टेटमेंट कश्मीर पे देना पड़ेगी। दे वुड एक्ट अकॉर्डिंग एक्ट एज पपेट ऑफ चाइना फॉर श्योर। या ठीक है ना, ये पपेट ऑफ चाइना के लिए जाएंगे, जैसा आज चाइना ने कहा कि हम G20 के जम्मू कश्मीर में होने वाले नहीं आएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक शॉट इन द आर्म है। ये अच्छी बात है कि चाइना ने खुल के कह दिया, ठीक है, तो उनके पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये अच्छा है। लेकिन इनको अरब वर्ल्ड से रिलेशन मेंट करने होंगे। अच्छा, अरब वर्ल्ड से जब ये सरकार तल्लक अच्छे बनाएगी तो अरब वर्ल्ड डेफिनेटली इसको कहेंगे कि भारत के साथ तल्लकात ठीक करो, और जब भारत के साथ तल्लकात ठीक होने की बात होगी तो पाकिस्तान को अपनी इन्फिल्ट्रेशन टेररिज्म को बंद करना होगा। ये इसमें डाउट नहीं है। आपको एक ये स्लाइड दिखाता हूँ जी। ये हमारा जनरल विनोद भाटिया हैं जो हमारे डीजीएम में रह चुके हैं। You know, recently as part of this G20 and everything, Burj Khalifa promoters are investing 500 crores as first foreign direct investment project in Jammu and Kashmir in a shopping mall and multi-purpose tower and all. जैसे अगर ये शुरू हो गया तो पाकिस्तान has lost its footing there. मतलब ये तो फिर ये वो बोलेंगे कि भाई आप बैक ऑफ। तो कश्मीर का मसला तो धीरे धीरे मैं तो देख रहा हूँ कि वो इट्स गोइंग टू फिनिश ऑफ। और नारे लगाने के लिए अच्छे हैं, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो बैक ऑन आर्टिकल 370। वो पॉलिटिकली इट इज अ डेड डील, राइट? आई मीन आई वुडंट से डेड डील, इट्स अ डन डील, देयर इज नो गोइंग बैक। So I think slowly politically Pakistan has to reconcile with the fact that they have lost Kashmir forever. Absolutely. सर वो पहले भी कश्मीर नहीं था उनके पास, but they had nuisance value. या 370 और 35A के हटने से पहले भी जो था वहां टेररिज्म हो रही थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में तो कुछ नहीं था ना। या अब तो स्टेबिलिटी आ रही है जम्मू कश्मीर बहुत बहुत बढ़िया अंदाज में। पीपल आर आल्सो, कश्मीरी पीपल आर आल्सो फेड अप ऑफ दैट प्रॉक्सी वार इम्पोज्ड बाय पाकिस्तान। तो अब वो भी, और फिर सेकेंडली G20 में ठीक है चाइना नहीं जाता, बाकी 19 कंट्रीज तो they're all going to come. ठीक है, तो आएंगे।
वो आएंगे। और उसके बाद फिर जो आपने बात की कि अभी ये जीसीसी कंट्रीज जो हैं, गल्फ कौंसिल कंट्रीज, अरब वर्ल्ड, दे आर इन्वेस्टिंग देयर। तो नॉट ओनली दैट, अभी जो हमने सुना ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, शहबाज शरीफ वेंट सेवरल टाइम्स टू सऊदी अरेबिया एज वेल एज यूएई, and he met leaders of Qatar and all GCC country leaders. तो वो सभी प्रेस कर रहे हैं कि यार अपने भारत के साथ तल्लुक पहले ठीक करो, फिर हमारे पास आओ। यूएई तो बैकडोर डिप्लोमेसी में मीडिएशन भी कहीं कहीं करने का काम करता है। हमने ये भी सुना था जो सीज फायर हुआ था, वो तो इमरान के दौर में ही हुआ था, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत Yeah, यूएई they naturally का पार्ट these था। track two always happens in UAE. ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में आई मीन दे आर मोर इंटरेस्टेड टू वर्क विद इंडिया देन पाकिस्तान, बिकॉज दे हैव Yeah, एक्सपीरियंस पाकिस्तान के। क्या उनको मिला है पाकिस्तान से, उनको क्या मिलना है? क्योंकि ना उनके साथ कारोबार हो सकता, पाकिस्तान को देना ही पड़ना है ना जीसीसी कंट्रीज को। पाकिस्तान से तो एक टके का फायदा नहीं होना इनको। तो भारत के साथ तो इनके बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के बिजनेस। yeah. On that, I have no doubt only. Right, but we have a situation in Pakistan, right? And where do you think this will go ahead? I mean, you think these people will hold elections now or in November? देखिए, Will uh, इलेक्शन की बात तो अक्टूबर में हो रही है। mm, इमरान तो पिछले साल अप्रैल 2022 में इसकी सरकार गिरी थी, वोट yes, हुआ और था। तब से रोज बोल रहा है कि तब से रोज बोल election, रहा है इलेक्शन हो इलेक्शन हो। इसके जो सपोर्टिव जजेस थे वो वो भी तब ये तक बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जजेस भी वो आर्मी के उन सेक्शन से उनको सपोर्ट मिल रही थी जो प्रो इमरान, प्रो अमेरिका थे। अब उनकी भी रिट लगता है, उन जजेस की भी अब मान पड़ रही धीरे है। धीरे या ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में Imran has also done big blunders in my opinion. ओके उसने उसकी अपनी सरकारें थी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसने डिसॉल्व कर दी। डिसॉल्व वो कर भी लिया वो भी आर्मी के जो उसके सपोर्टर लोग थे उनके कहने पे। और लेकिन उससे क्या हुआ कि अब वो लाहौर जहां उसका जमान पार्क है, और जहां उसी पे के ऊपर हाँ वहां पर ही उसकी वो थी गवर्नमेंट थी। तो वो पहले पेशावर कभी चला जाता था, वहां पे भी उसकी गवर्नमेंट थी। तो ही हैज डन बिग ब्लंडर्स इन पॉलिटिक्स। yeah, he's given away government power in half the country, यस यस। तो right? अब ये है कि ये सरकार अब ये देख रही है कि किस तरह हम ये जो पाकिस्तान में महंगाई के इश्यूज हैं, जो इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, इस पे थोड़ा काबू पाएं। और इस सरकार को भी अब ये मौका मिल जाएगा कि ये इलेक्शन थोड़ा पोस्टपोन करवा दें। अब इमरान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी नीचे जाना शुरू हुआ है 9 मई के इंसिडेंट के बाद। चूंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इनहेरिटेंटली प्रो आर्मी है। तो वो Yes, जो on that there's no doubt because ठीक a lot of people have come up and said, "Look, army hai to desh hai and all that," या and right? फिर हम देख रहे हैं कि ओवर अ डजन पीपल फ्रॉम हिज पार्टी एमएनएस दे आर लीविंग द पार्टी। हिज लीडरशिप इज एट द मोमेंट इज इन द जेल एंड दैट लीडरशिप इज वेरी डूबियस एज वेल। वो भी बाहर आते ही इसका Yeah, but एक एक चीज है कि ये जो लीडरशिप है ना उनका सेकंड रैंक लीडरशिप वो कोई नॉट दे आर नॉट ओनली नॉट डूबियस, उनका कोई वैल्यू भी नहीं है। या देखिए जैसे आपने बोला इमरान पार्टी इज अ वन मैन पार्टी। यस यस इट इज नाउ इमरान वर्सेस द आर्मी एंड इमरान वर्सेस शहबाज शरीफ और whoever, अगर वो जिंदा है तो राइट। एंड ये तो मानना पड़ेगा ही स्टिल पॉपुलर, जी he is still he is popular. popular and the fact is that you know if you go by the past thing कि उसने almost all seats which he has contested he has won also, राइट राइट। and the likelihood is अगर ये elections अगर आज हो गए तो most likely he'll come back। या देखिए 6 महीने के बाद अगर अक्टूबर तक अगर ये इलेक्शन स्थगित हो गए तो शायद पूरा सीन बदल जाए तब तक, राइट। But what I see, this is my view. While Imran has popularity, he has no organization. The other lot have organization, but they have no popularity, right?
And of course the army is like, is a master puppeteer which is doing a lot of things. But they have a chief who seems to be a bit imbalanced. He might be very good at uh, getting things together. He seems to be a bit imbalanced. ये क्योंकि सियालकोट में जाके इसने जो मुंह खोल दिया, जिस तरीके से इसने मुंह खोल दिया और गाली गलौज तक उतर आया है, so it seems to be he seems to be a little imbalanced also. So with this kind of a thing, I don't know whether you'll get a stable government first, right? If you get a stable government going down the line, whether their economy will revive. क्योंकि जितने दिन, अगर मान लीजिए अगर आज के दिन पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गया, एक गवर्नमेंट आ गया, चाहे वो अच्छा गवर्नमेंट हो या बुरा गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो रिवाइवल हो सकता है. अगर जिस तरीके से ये आर्मी और शहबाज शरीफ का जो पीडीएम है, ये चाहते हैं कि अक्टूबर तक इलेक्शंस डिले करे, तो अगर इलेक्शन तब तक डिले करेंगे तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा, राइट? इमरान बोलता रहेगा, उसको ये कुछ कर नहीं पाएंगे. अगर वो उसको जेल में भी डाल दें तो प्रॉब्लम है, जेल में ना भी डालें तो प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आर्थिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकता, रिकवरी भी नहीं हो सकता. सो विच एवर वे यू लुक एट इट, आई डोंट सी थिंग्स इंप्रूविंग, आई मीन द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड बियॉन्ड. आप ठीक कह रहे हैं. देखिए, इमरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. अगर हम सपोज करते हैं कि इलेक्शन हो जाता है, राइट, तो ये जीत जाता है, जो इस वक्त ये राइट, या, पॉपुलर, तब भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देगा. ओके, बिकॉज हमने देखा है कि जब ये सरकार में था, तब भी इसने ऑपोजिशन के लोगों को हर वक्त जेल में डाला होता था. तो देखिए, जब भी ऑपोजिशन के लोगों का आप क्रैक डाउन कंटिन्यू बेसिस पे करेंगे, चाहे इमरान खान ने किया था तब भी स्टेबिलिटी नहीं थी, चाहे ये लोग अब कर रहे हैं तब भी स्टेबिलिटी नहीं है. तो स्टेबिलिटी तो पॉलिटिकल कभी भी नहीं होती जब आप ऑपोजिशन का क्रैक डाउन करते हैं, जैसा आज भी नहीं है. बिकॉज दिस गवर्नमेंट एट द बिहेस्ट ऑफ आर्मी आर्मी, वो कर रही है क्रैक डाउन, तो स्टेबिलिटी तो नहीं है ना. लेकिन अगर ये इलेक्शन, इनकी मैनूवरिंग या इमरान की पॉपुलैरिटी नीचे चली गई नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, जैसा कि इलेक्शन स्केड्यूल्स हैं अक्टूबर 8 को, जो अपने ओरिजिनल टाइम, अगर वो तब तो होते हैं और ये हार जाता है इमरान, उनकी कुछ पॉलिटिकल मैनूवरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनूवरिंग होती है, कुछ इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी नीचे जाता है, तब भी उसने इलेक्शन नहीं मानना. बट ही इज अ काइंड ऑफ अ गाय who likes to create instability. right, It doesn't matter he's in power or or not. he's not. ठीक So है. आप जो बोल रहे हो इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान till he's around. जी, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही. अब ये है कि देखने वाली बात ये है कि अब ये जो जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में या, इसका क्रैक डाउन ऐसा हो जाए, वो उनको ये शक्ल तो ये लग रही है कि इनकी पार्टी तोड़ दी जाए. जब इसकी पार्टी टूट जाएगी तो फिर इसकी इसकी जो मैनूवरिंग की पावर है वो भी टूट जाएगी. बिकॉज अभी तो ये उछल रहा है ना, नाच रहा है कि इसकी पार्टी पॉपुलर है. बट वी हैव सीन हिम सिंस 1997 1996 जब इसने पार्टी का किया था. I was one of those people at that time who were very close to him at the time. okay, मैं उनकी पार्टी का जो वन ऑफ द फर्स्ट प्रेस सेक्रेटरी होता था इन 1997. लेकिन एट दैट टाइम हम इससे कभी नहीं मिले थे. मुझे तो ये था कि ये एक हीरो है जिसने क्रिकेट खेली है, फिलैंथ्रोपिक काम किया. आई रिमेंबर व्हेन आई हैड कपल ऑफ मीटिंग्स विद हिम, आई वाज यंग relatively, I realized this man is very hollow and shallow. right. तो Yeah, that there's no doubt. He's hollow and shallow. Actually, you use the right words. राइट. तो वो हमें तब अंदाजा हो गया था. लेकिन देखिए, 96 97 से ये बोल रहा है प्रिसाइजली ये 9/11 के बाद अमेरिकन ड्रोन हमलों के बार खिलाफ ये बहुत मिलिट्री के हाथों यूज हुआ और ये बहुत बोलता रहा. लेकिन ये कभी भी स्टेट के लिए चैलेंज नहीं था अंटिल 2017 तक. क्योंकि
बोल रहा है ना एक आदमी, इस तरह के और भी पॉलिटिशियंस बोलते हैं। ये चैलेंज बना है जब अमेरिकन चाइना को करने के लिए, इसको अमेरिकन ने समझा कि ही इज द राइट गाय। या फिर इस पे काम तो कर रहे थे जनरल गुल हमीद से लेके जनरल रहील शरीफ एंड इवन मिस्टर कियानी उससे पहले थे, अशफाक कियानी, और जितने अशफाक खान। आईएसआई के आते थे वो सब इसको बिल्ड करने में लगे हुए थे। अच्छा, वो लगे हुए थे, कभी भी जरदारी सरकार को या इवन नवाज शरीफ सरकार को इससे थ्रेट नहीं था। इसने धरने भी किए, कंटेनर्स भी किए, सारे इसने ड्रामे किए, बड़े सक्सेसफुल ड्रामे भी किए, बट ही वाज नेवर अ बिग थ्रेट टू पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास, एस्टैब्लिशमेंट, यस। ठीक है, या पाकिस्तानी। फिर ये असल में तब बना जब अमेरिकन ने फुली तौर पर इसको ऑन बोर्ड ले लिया, और पाकिस्तानी जर्नैल उस वक्त स्पेशली मिस्टर कमर जावेद बाजवा, जब when they decided इमरान खान प्रोजेक्ट, तब ये चैलेंज बना। ठीक है, ये चैलेंज नहीं बना, he was made into a challenge. यस एब्सोल्युटली He was made into a challenge, yeah. ठीक है, अब इसका जो चैलेंज होने वाला जेस्चर है, अगर वही आर्मी धीरे धीरे इसके पांव से जमीन खींच लेती है, इसकी पार्टी है ना इस वक्त, तो अब ये इस वक्त ये समझ रहा है कि ये भूल गया कि इसको किसने बनाया। अब ये समझ रहा है कि ये पॉपुलर है तो ये अब कुछ भी कर सकता है। ही इज वेरी नाइव। पॉपुलैरिटी डजंट स्टे फॉर एवर, वो ऑलरेडी एरोडिंग कर रही है इसके केस में। और जब ये पार्टी के अभी तो उन्होंने को 15-20 लोग निकाले हैं, जब और कोई 50-100 लोग निकाल देंगे वो पार्टी में से, जब पार्टी इसकी खत्म हो जाएगी तो इसके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फिर ये भले से बोलता रहे, who cares, क्योंकि पहले भी तो ये बोलता रहा था ना, from 96 until 2017. So you see that his party will be slowly undercut over a period of next 2-3 months. Definitely, absolutely. वो ऑलरेडी हमने 2-3 दिनों में देख लिया है। Right. So that means अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का क्या दृश्य बन रहा है, because I'm, without getting into the intricacies of what is happening today, I'm looking at forward. So 2-3 months later, what we see, the scenario which is coming out of our talk, Imran Khan will slowly could become politically sidelined, right? And in an election, the PDM might come back into power or rigged back into power. After all, he came up due to rigged elections to a large extent. So that same reverse rigging can happen with the help of the army. And you'll see from October the same story coming back with a consolidated army and a consolidated Shahbaz Sharif and whoever. So that's the thing which we would you visualize seeing 3-4 months down the line. जी देखिए, मूविंग फॉरवर्ड सर, अगर ये गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि इमरान को तो पावर में आने देंगी। No, so fine. So we are looking at a government without Imran. This same government, पीडीएम री-इलेक्ट हो जाती है, right? Either जिसे हम हुक एंड क्रुक कहते हैं, hook and crook, PDM comes back by say October or so. In that case, PDM government in that case would be little stable government, not fully stable, but little stable government than today's government. फिर उसके लिए 4 challenges हैं: economy, economy, West, China and India. Okay. अब वो इस तरह 4 challenges हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इकोनॉमी तो है ही है, वो तो सिंपल है, सबको नजर आ रहा है। वेस्ट इसलिए कि वेस्ट को बहुत हैप्पी नहीं होगा ये चाइना के साथ जाएंगे। अच्छा, चाइना अगर इसको इंडिया के खिलाफ यूज करना चाहेगा पाकिस्तान को, तो अरब वर्ल्ड हैप्पी नहीं होंगे, ठीक है। और अरब वर्ल्ड जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई चाइना के फ्रेंड नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल नाउ, ठीक है। तो वो ये कर रहे हैं कि वो अपना भारत के साथ भी इनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, चाइना के साथ भी बढ़िया है, रशिया के साथ भी बढ़िया है, और वेस्ट के साथ भी बढ़िया, ठीक है। सो
Arab world is doing very well, especially जो ये rich country हैं. जब मैं Arab world की बात करता हूँ, Yeah, UAE basically, and ये जो 7 countries है yeah, GCC, ठीक, और plus Egypt and तो Egypt, of course, is in a bad shape. yeah, Uh, Egypt is in bad shape, but the government is very powerful there. okay, yeah, I agree with you. ठीक है. तो अच्छा, इस सारी सिचुएशन पाकिस्तान को 4 चैलेंजेस है. जो इकोनॉमी का चैलेंज है वो बाकी 3 चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है. अब चाइना की तो होगी ये तमन्ना कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसका एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज हो. अच्छा, चाइना तो ये चाहेगा. अब पाकिस्तान ज्यादा प्रॉक्सी करता है तो भारत के मसल्स स्ट्रांग है. भारत इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी. Yeah, in fact, I'll put it this way: if जी. China, if Pakistan becomes a proxy of China, so and starts acting against India, and फिर तो इसका इकोनॉमी कहीं टेक ऑफ नहीं करेगा. ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही. अच्छा, वो चैलेंज भी ऐसी है. अरब वर्ल्ड भी कहेगी कि भाई तुम अपने काम से काम रखो. तो मुझे यूं लगता है कि ये जो स्पेशली शरीफ फैमिली है, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. इमरान खान तो ऐसा आदमी है जो अंडरस्टैंड. इमरान खान तो छोड़ दीजिए. we are discussing a thing where Imran Khan is sidelined. तो ये जो शरीफ फैमिली के लोग हैं, दे आर रिलेटिवली वाइज पीपल, सीजन लोग हैं. जो बातें मैं कर रहा हूँ वो उनको मेरे से ज्यादा बेहतर. Yeah, I agree with you. ठीक है ना? Because they are in the game, we are just the observer. I'm just an observer. Yeah, I agree with you. ठीक है. They are in the game. वो चेस खेल रहे हैं, मैं तो बाहर बैठा देख रहा हूँ. तो वो मेरा ख्याल है कि अब उनकी यही कोशिश होगी पाकिस्तान की इस लीडरशिप की, माइनस इमरान खान, कि भाई हम किसी तरह से धीरे धीरे रिलेशन बनाएं. बिकॉज उनको अरबों का भी प्रेशर है और अरब भी कहते हैं कि तुम कभी भी अब अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते अगर तुम भारत के खिलाफ जाओगे तो. बिकॉज हमारे इंटरेस्ट भारत के साथ हैं. भारत एक बड़ी इकोनॉमी है. भारत एक बिग रियलिटी है. भारत बेसिकली एक पीसफुल कंट्री है. दे हैव नेवर अटैक्ड एनीवन. वो सिर्फ अपने डिफेंस में है और अपनी सुरक्षा के लिए. अच्छा, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को ये बात आज भी समझा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी समझाएंगे. और ये शरीफ फैमिली और इवन जरदारी लोग भी ये समझते हैं इस बात को. अब इनका चैलेंज ये है कि किस तरह ये चाइना के साथ, थोड़ा सा इंडिया के साथ रिलेशनशिप लाने के लिए बैलेंस रखें, चाइना से भी बैलेंस रखें, और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी ये पूरी तल्ल खराब नहीं कर सकते. They can't afford. F-16 वहां के हैं, इनका बहुत सारी वेपनरी वहां की है. इनको they can't. That was very clear when General Bajwa उसने तो बोल दिया he started going towards the west and USA. इसीलिए क्योंकि अगर वो वहां चला गया तो इसका F-16 का फ्लीट डाउन हो जाएगा. और ये जो चाइना के जितने उनको सामान मिला है मिलिट्री आइटम्स, दे आर नॉट रिलायबल. या एब्सोल्युटली. ये तो सबको पता है. तो पाकिस्तान का बिगेस्ट चैलेंज फिर बैलेंस हो गया. अगर एक शब्द में बात करूं, they have to find their balance. The challenge is in finding the balance. Okay. Yeah. Now, given the fact that this Asim Munir, to be very honest, I thought he was a very stable man. When he took over, I thought he was doing things in a very stable manner. Till what he spoke at Sialkot, right? जिसने बोला है वो अभी पब्लिक है और everyone knows internationally what this thing is, and he's shown a high degree of instability in what he has spoken. So do you think he can change, or will be conscious of it, or where do you think this will all go? This is hard to predict at this moment, honestly. Yeah, I'm asking a very tough question. Yes, no, it is a tough question because हमें अभी तक हम मिस्टर आसिम मुनीर को अभी बहुत रिसेंटली आए हैं और ये ज्यादातर खामोश रहे हैं. और जब इन्होंने मुंह खोला है तो अच्छा नहीं खोला. ये बात ये बात तो पक्की है. इनके मुंह खोलने से हमें ये पता चला कि perhaps he is not a seasoned man. Yeah.
I have always been critic to Pakistan Army, but the thing is वो एक अलग बात होती है. हम as an analyst हमें ये Yeah, देखना as कि an analyst only, I mean, like whatever you say, Bajwa was very shrewd. He knew how to manipulate. right, So was people behind him, before him, like Rahil Sharif or Kyani and all. We've analyzed them. right. But this man seems to be from a different caliber altogether. And his, जैसे आपने बोला, जिस तरीके से उसने मुंह खोला है, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया. जी वो आ गया, वो क्वेश्चन मार्क आ गया. अब हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं. Okay, ठीक है. Yeah, but that benefit of doubt would not go more than 3 months further. Yeah, we have to see. We have to see whether he is. I've also been पिछले एक हफ्ते से, जिस दिन से ये शुरू हुआ, I've been seeing a lot of Pakistani channels, right? And I've been getting a view of everyone. The veterans seem to be very, very against the current chief, Right. for many reasons. Yes. Right? They are totally against. Just 2 days, I mean, I won't say 2 days, just about 1 hour back, I was listening to two young Pakistanis talking. Right. Unka channel, and this, of course, naturally, wherever they were based. And one was a very articulate chap who had a lot of his figures right and everything right. And I'll just put forth their views to you, and you could have a take on it. एक ने बोला कि the first step asked the thing, what is the solution for Pakistan? He says the only solution for Pakistan is democracy and elections, immediate. He says, what if an idiot gets selected? He says, so be it. Unless Pakistan goes through cycles of idiocy, through democracy, you will not get a good person to resolve their long-term problems. And I found some logic in it, right? And unless democracy comes, and mind you, this youngster, he recounted Pakistan's history right from 1947, and he analyzed how the army has fingered everything and all, and he was quite a sensible kind of a chap. He says, unless an idiot comes, even if he's an idiot, and he has the capability of putting army in its place to some extent, Pakistan might go down immediately, but in the long run, it will rectify itself. So, I mean, what's your take on such a outlook? देखिए बात यह है कि आर्मी को उसकी प्लेस पे रखना इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है. लेकिन इशू ये है कि कौन रखेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है. अभी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान इज इन अ पोजीशन टू पुट आर्मी इन दिस प्लेस. लेकिन जैसा मैंने पीछे कहा है कि इमरान खान ये नहीं कह रहा. वो ये कह रहा है कि हमारे साथ मिल जाओ. वो ये नहीं कह रहा कि आर्मी को कि मैं आपको आपकी पोजीशन में रखूंगा. वो ये कह रहा है मुझे मेरी पोजीशन में ले आओ वापस. Yeah, I agree with you. ठीक है. If this is democracy, if that is what Imran Khan looking through immediate election, then that's not democracy either. That's not democracy either. That would be a further disaster. ठीक है. ठीक है. अब पता नहीं पाकिस्तान में लोगों का ये क्यों ख्याल है कि वो रेवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं. रेवोल्यूशन तो दुनिया में कहीं नहीं आता आज के जमाने में. अब तो एवोल्यूशन ही आता है. Yeah. चीजें इवॉल्व होती हैं. द सोसाइटी ओवर देयर इज नॉट इवॉल्विंग बाय एनी मीन. नाइदर सोशल माइंडसेट में इवॉल्व हो रही है, ना ऑर्गेनिक इकोनॉमी में बनाने में इवॉल्व हो रही है. उसमें फिर ये रेवोल्यूशन की बात करते रहते हैं कि रेवोल्यूशन थ्रू डेमोक्रेसी आ जाए. डेमोक्रेसी क्या है? मैंने जैसा पीछे कहा, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द नेम ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन. No, there are a lot of things more to that. It has lot more component in it. ठीक है. अब उन कंपोनेंट में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो तो रियलिस्टिक सोचना है, रैशनैलिटी है. अब वो रैशनैलिटी है नहीं. एक वो बने हुए हैं पाकिस्तान के यंग ब्लॉगर्स हों या जो ऐसे फैशनेबल जैसे हम स्लोगन्स कहते हैं ना, वो बने हुए हैं. जी ये लेफ्ट है, ये राइट है,
ये डेमोक्रेसी है. I urge them first to define and understand those slogans. Yeah. ठीक है, पहले तो वो उसको डिफाइन करें, फिर अंडरस्टैंड करें, और फिर ग्राउंड रियलिटीज के साथ देखें कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, या सिंपली कह देना. देखिए, बिकॉज पाकिस्तान हैज विटनेसेस मैनी इलेक्शंस. ठीक, But it has not brought democracy in. ठीक. Yeah. जरदारी की सरकार आई, जरदारी की सरकार के ऊपर कितना प्रेशर था आर्मी का, मेमो गेट बना, उनके प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल दिया, यूसुफ रजा गिलानी को निकाल दिया, वो सरकार सरवाइव की, एंड दे हैंडेड ओवर पीसफुली टू नवाज शरीफ. अच्छा, फिर नवाज शरीफ की सरकार में भी क्या हुआ कि नवाज शरीफ को हटा दिया गया छोटे छोटे मुकदमे के, बेटे ने उसकी अपनी कंपनी से उसको तनख्वाह नहीं दी, यानी इस बात पे जजों ने. फिर उसकी भी सरकार में कई प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन वो सरकार बहरहाल चली. और जब ये इमरान की सरकार आई तो इसको हैंड ओवर किया उन्होंने पावर जो है. तो दो सरकारें चली, भले से प्राइम मिनिस्टर कोई एक नहीं रहा उनकी एक एक सरकार में. Yeah. लेकिन सरकारें चली. लेकिन इन द एंड क्या हुआ? इन द एंड ये आ गया, इमरान खान आ गया. अच्छा, ये भी पीसफुल तरीके से आया था, इसको भी पावर ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इसकी भी जो सरकार गई है वो लीगल तरीके से गई है. किसी जर्नैल ने आके इसको उठा के बाहर नहीं फेंका, थ्रू द पार्लियामेंट. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ. ठीक है, तो इसकी भी तो यानी हम कंसेक्टिव 3 सरकारें देख रहे हैं. Yeah, but it's still not democracy. Unfortunately, not. yeah, it's not democracy. I think so. I think I think we've had a great conversation, right? Pakistan is a riddle which is not going to be solved, and it doesn't have a solution. And I think Pakistanis have to find their own solution, and they have to find their own solution through their economic problems and the kind of internal displacement which they've had through a lot of floods, right? And the Pakistani army, for whatever reason, good, bad, or ugly, has put them in a geopolitical situation where they are answerable not only to of course they're not never been answerable to the public, but they have to be answerable to China, America, and Saudi Arabia, and the Gulf countries. They're in an unenviable position. They brought their whole country to a situation where there's no productivity, there is no economic traction within the country. So it's a tough nut. What I see, I mean, I don't know, I mean, you can have the last word of what I say. I don't see this country reviving in a hurry, at least for the next decade. आप ठीक कह रहे हैं. Apparently यही लगता है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का पैटर्न फॉर द पास्ट 14-15 ईयर से हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रेसी कहीं, उसकी स्पिरिट कहीं नजर नहीं आ रही. इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश है, और उसका कारण सर यही है कि ये जो माइंडसेट है ये बहुत बुरा है. एक तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज, अगर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करेंगे तो इनकी इकोनॉमिक there are a lot of things they have to look. All they have to do is look east. Yes, their solutions are in the east. Their problems at this point of time are in the east, psychologically. Right. So Pakistan has to change its mindset as well as its foreign policy, as well as its rational approach इनको adopt करनी है. Until unless that happens, they wouldn't go anywhere. They'll be I trapped agree in with the situation where they are. There they are. Right. I think we've had a great conversation, and I request all viewers watch Tag TV. I'm a regular. I watch. Please subscribe to Tahir Bhai's channel. I regularly watch, and ये नहीं कि आज के दिन मैं actually इनको ना पहले तारिक फतेह साहब के साथ बातचीत सुनता था, और मैं सोचता था, आज मैं खुले बता रहा हूँ सब लोगों को कि भाई ये दो शख्स कौन है जो इतना रैशनल बात कर रहे हैं.
राइट? ये 4-5 साल की पहले की बात है, और तब से मेरे को आदत पड़ गया आपका टीवी देखते, आपका चैनल देखते हुए। और जब संजय दीक्षित साहब ने आपको और हमें मिलाया, राइट, 3 महीने पहले, so I was very happy. I said, to be very honest, I was a little odd कि भाई मैं ताहिर गोरा के साथ एक ही चैनल में बात कर रहा हूँ, right? And it is so nice that I've been able to speak to you. And I would like to come and speak on TAG TV someday on whichever topic you want. Definitely next week, sir.